Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 54th, and from today's lecture we are going to start the unit number 4, that is design of gears. So in this session we are going to recall some previous syllabus, and we will look into the introduction to unit number 4. So let's get started with this session. The syllabus recall. So till date we have completed the unit number first, that is introduction of design. Then unit number second is design of chassis component. Unit number third was the design of shaft and keys. Unit number fifth was the design of engine component, and unit number 6 for the aesthetics and ergonomic consideration of designs. Okay, so far we have completed the 66 marks of 80% or 80 marks. That means the more than 80% syllabus has been completed till the date, and only we have left the unit number 4, that is design of gears. So for this unit you have 14 marks of theory distribution. So here is your previous slide of unit or sub-units of this ACD syllabus. So we have only unit number 4 left over here, so you can see. So let's take a look into the content of unit number 4. Totally we have 4 types of gear we have to design in this session or in this unit. That is, first one is spur gear, then helical, bevel, and the worm gear. So only 4 type of gear is included in your syllabus. So let's start with the introductory part of this unit. So as you know that there are slipping of belt or rope is very common phenomena in the transmission of the motion or power between the two shaft. ओके, आपको ये पता है कि जब हम रोप या फिर बेल्ट ये दोनों में से जो भी एक कॉमन वे है ट्रांसमिशन ऑफ मोशंस का, तो उसमें एक स्लिपिंग फैक्टर बहुत अफेक्टेड होता है. तो इसको ओवरकम करता है आपका पॉजिटिव ड्राइव. ठीक है, तो पॉजिटिव ड्राइव में आपका बेस्ट एग्जांपल है गियर ड्राइव और टूथ व्हील. ओके, द इफेक्ट ऑफ स्लिपिंग इज टू रिड्यूस द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम. जो भी स्लिपिंग होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका वेलोसिटी रेशियो डाउन हो जाता है. सो इन प्रिसाइज मशीन, फॉर एग्जांपल इन वॉच मैकेनिज्म, in which a definite velocity ratio is importance. So that's why the only positive drive is by gear or tooth wheel is carried out. कुछ जगह पे आपको यानी बहुत प्रिसाइज मोशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि वॉच मैकेनिज्म में. तो जो पॉजिटिव ड्राइव है आपको एनेबल करता है इस हाई वेलोसिटी रेशियो ऑब्टेन करने में. ठीक है, तो जो भी आपका बेल्ट और रोप ड्राइव का डिसएडवांटेज है वो ओवरकम करता है आपका गियर ड्राइव. सो कुछ गियर ड्राइव्स के अपने एडवांटेज है ओवर दिस बेल्ट और रोप ड्राइव. द फर्स्ट वन इज इट ट्रांसमिट्स द एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो. देन द सेकंड इज इट मे बी यूज्ड टू ट्रांसमिट द लार्ज पावर. थर्ड वन इज इट मे बी यूज्ड फॉर स्मॉल सेंटर डिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट. ओके, आपका जो ये बेल्ट और रोप ड्राइव होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन को कैरिड आउट करने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो गियर ड्राइव है वो आपको हेल्पफुल है स्मॉल डिस्टेंस सेंटर को ट्रांसमिट करने के लिए आपकी पावर. ओके, देन फोर्थ इज इट हैज़ हाईली इफिशिएंसी. देन इट हैज़ reliable service and it has compact layout. So these all are the advantage of the gear drive, but there are some few disadvantage also, and the disadvantage is it
since the manufacture of gear is required special tools and equipment, therefore it is costlier than the other drives, obviously. Then second disadvantage is its error in cutting teeth. It may cause vibration and the noise during the operation. The third disadvantage is it requires suitable lubricant and the reliable method of applying it for the proper operation of the gear drives. On the other hand, rope and belt drive does not require any lubrication. So these are some disadvantage of gear drive. Okay. So let's have a quick look into the type of gear drive. So the first classification is according to the position of axis of the shaft. The axis of the two shafts between which the motion is to be carried or vibration is to be transmitted may be a parallel or intersecting or non-intersecting nor parallel. Okay, so these three are the subcategories of under the position of axis. So these are some types of gears. There are helical gears or sprue gears, then we have rack and pinion, then we have worm gears, then we have bevel gears, then we have sprocket gear over here. So out of this, this sprue gear is parallel to each other. Okay, the axis of these two shaft, ये जो आपको इंटरनल डायमीटर कट आउट दिखता है, यहाँ पे आपका जो शाफ्ट फिट बैठेगा वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है. तो इस वजह से आप ये स्प्रू गियर को कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर दी पैरेलल एक्सिस. ओके, सो अपोजिट टू दिस वॉर्म गियर को देखिए, इसका ये शाफ्ट और ये अनदर शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग है, बराबर है, नॉन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है. तो ये कैटेगराइज किया जाएगा आपके अंडर द इंटरसेक्टिंग टाइप ऑफ gear. Okay, so also rack and pinion is also a type of intersecting. Okay, so then we have a bevel gear which is non intersecting non parallel. ठीक है, इसके दोनों शाफ्ट है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और पैरेलल भी नहीं है. Then we have another sub type of this gear drive which is based on the according to the peripheral velocity of the gear. आपकी गियर की जो वेलोसिटी होंगी उस पर डिपेंड किया जाता है ये. तो पहले कैटेगरी है लो वेलोसिटी, सेकंड है मीडियम वेलोसिटी, थर्ड है हाई वेलोसिटी. लो वेलोसिटी आपकी आती है अप टू दी 3 मीटर पर सेकेंड से कम. ठीक है, आपका जो अगर गियर ड्राइव है जो भी है वो अगर रोटेट हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के कम के स्पीड से, कम वेलोसिटी से, तो उसे टर्म दिया जाता है लो वेलोसिटी गियर. ठीक है, देन मीडियम वेलोसिटी गियर कहा जाता है जिसकी वेलोसिटी होती है 3 मीटर पर सेकेंड से लेके 15 मीटर पर सेकेंड तक, तो वो उसे कहा जाएगा मीडियम वेलोसिटी गियर. और फाइनली हाई गियर वेलोसिटी किया जाता है जो कि जिसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा, तो उसे कहा जाएगा हाई स्पीड गियर्स. और एक टाइप देखते हैं आगे. तीसरा टाइप है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गियरिंग. सो एक्सटर्नल गियरिंग, इंटरनल गियरिंग, रैक एंड पिनियन, दीज थ्री टाइप्स आर कैटेगराइज अंडर दी अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गियरिंग. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल टाइप ऑफ गियरिंग होता है जैसे कि इसके टूथ एक दूसरे को आउटसाइड से मेश किया है. उसके अपोजिट इस फिगर में देखिए, इस दोनों गियर को जो भी आप इसके टूथ व्हील है वो इंटरनली एक दूसरे के साथ मेश्ड है, तो इसे कहा जाएगा इंटरनल टाइप ऑफ गियर. एंड अदर टाइप होता है रैक एंड पिनियन. ठीक है, एक सर्कुलर व्हील जो है जिसे टूथ है उसे कहा जाता है पिनियन, और उसके अपोजिट होता है रैक. रैक होता है कि इसकी जो रेडियस होती है इनफाइनाइट होती है. इनफाइनाइट रेडियस मीन्स स्ट्रेट लाइन. ओके, रैक जो होता है आपका इनफाइनाइट रेडियस का होता है, जिसकी आप कह सकते हैं कि जिसका एक्सिस कैसा है, स्ट्रेट लाइन है. तो ये एक टाइप है गियर का आपके. उसके बाद और एक टाइप आता है लास्ट, द फोर्थ वन इज
according to the position of teeth on the gear surface. The teeth on the gear surface may be straight, it may be inclined, or it may be curve. सो इस फिगर में मैंने आपको काफ़ी सारे गियर, उसके नेमिंग और उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया है. हो सकता है कि इस वीडियो में आपको ये जो भी डिस्क्रिप्शन है क्लियरली विजिबल ना हो, तो इसलिए इस लेक्चर के साथ मैं इस स्पेशल इमेज आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आपको इसी पर क्लासरूम में मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा. आप वो देख लीजिए और इसके सारे के डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए. तो इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होती है वाइल डिज़ाइनिंग दी गियर ड्राइव. So following are some requirements which must be met into the design of gear drive. The first one is the gear teeth should have sufficient strength so that they will not fail under the static loading, or it may be dynamic loading during the normal running condition. अब जो भी गियर डिज़ाइन करोगे उसके जो टूथ होते हैं वो सफिशेंटली हाई स्ट्रेंथ से होने चाहिए, क्योंकि वो स्टैटिक और डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में फेल नहीं होना चाहिए. उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट आता है गियर टीथ शुड हैव वियर कैरेक्टरिस्टिक सो दैट देयर लाइफ इज सेटिस्फैक्टरी. द थर्ड कंसिडरेशन इज इट यूज ऑफ स्पेस एंड मटेरियल should be economical. Then थर्ड कंसिडरेशन आता है आपका अलाइनमेंट के बारे में. अलाइनमेंट ऑफ द गियर एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट मस्ट बी कंसिडर्ड बिकॉज दे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द गियर. मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक जो शाफ्ट पे आपका गियर माउंट होने वाला है, ले लेते हैं कि आपका शाफ्ट बहुत आपने छोटे डायमीटर का लिया है और गियर का डायमीटर बहुत ज़्यादा ले लिया, जिसका वेट का इफेक्ट हो रहा है आपके शाफ्ट के बेंडिंग पर. बराबर है ना. हो सकता है आप उसका शाफ्ट ही आपका डिफ्लेक्ट हो जाए या बेंड हो जाए इस गियर के वेट से. तो डेफिनेटली आपको ये शाफ्ट और गियर का जो भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से करना होगा कि उसका अलाइनमेंट ख़राब ना हो और उसका डिफ्लेक्शन भी ना हो. ठीक है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है आपको व्हाइल डिजाइनिंग दी गियर ड्राइव. Or the last and the important is one is the lubrication of the gear. It must be satisfactory. So in the design of the gear drive, the following data is usually given. आपको जो भी gear drive को डिज़ाइन करने आपको बताया जाएगा न्यूमेरिकल्स में. तो उस न्यूमेरिकल में जनरली आपको इस कुछ डेटा गिवन, स्टैंडर्ड डेटा दिया जाएगा. उसमें पहला डेटा होगा आपका पावर टू बी ट्रांसमिट. कितनी पावर आपका गियर ट्रांसमिट कर सकता है वो पहला आपको सबसे पहले डेटा दिया गया होगा. उसके बाद दिया गया होगा कि स्पीड कितनी होती है गियर ड्राइविंग की. ठीक है. पहला डेटा होता है आपका पावर, सेकंड डेटा है आपका स्पीड, तीसरा डेटा है आपका स्पीड ऑफ द ड्रिवन गियर और द वेलोसिटी रेशो. मतलब आप सीधे सीधे ऐसा इस बात को समझ सकते हैं कि या तो स्पीड दी होंगी आपकी ड्राइविंग की, या फिर स्पीड दी होंगी ड्रिवन की, या फिर दिया होगा आपको वेलोसिटी रेशो. अगर वेलोसिटी रेशो दिया है उसके साथ साथ किसी भी एक चीज़ की आपको वैल्यू दी होंगी, या फिर ड्रिवन गियर की या तो ड्राइविंग गियर की, तो आप अदर की आप फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करना मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बता दूंगा. फिलहाल आप फोर्थ कंसिडरेशन पे ध्यान दीजिए. तो फोर्थ आपको दिया गया होगा सेंटर डिस्टेंस. ओके. सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, जो भी दोनों व्हील है उसके बीच में से जो सेंटर से आपका शाफ्ट जा रहा है उस सेंटर का जो भी डिस्टेंस बनता है वो होगा आपका सेंटर डिस्टेंस. सो टिल दिस सेशन वी विल स्टॉप ओवर हियर. तो आज हमने देखा कि कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट, उसके पहले हमने सिलेबस रिकॉल किया, उसके बाद हमने कुछ कंसिडरेशन देखे, उसके बाद हमने कुछ टाइप्स देखे, और फाइनली हमने देखा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किस किस कौन सा डेटा आपको दिया गया होगा. ठीक है. तो आज के लिए आप ये सब प्रैक्टिस कीजिए.
तो नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कि कुछ स्ट्रेंथ कितनी होती है, या फिर कौन सा लेविस इक्वेशन क्या होता है, कुछ डेरिवेशंस देखेंगे हमने रिलेटेड टू गियर ड्राइव. सो वी विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू.